हैदराबाद में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पब्लिक सेफ्टी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसके जरिए जराइम को रोकने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। रियासती वजीर KTR ने ये बात कही। साइबराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर KTR के अलावा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP और पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। KTR ने अपने खिताब में कहा कि शहर हैदराबाद के 65% मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में जराइम का फीसद बहुत कम है। పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉంది, కానీ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ రావాలి అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే ఎంత గొప్ప పాలసీస్ తీసుకొని వచ్చినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు. కానీ థ్యాంక్స్ టు effective policing and Telangana cops determined efforts in the last 6 years, ఈ రోజు తెలంగాణలో చూద్దామంటే మచ్చుకు కూడా కమ్యూనల్ టెన్షన్ లేదు. Crime has come down without a question. Numbers, statistics prove that. And most importantly in fact, if you ask me, ఇన్ని అనుమానాల మధ్యన ఏర్పడ్డ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి వివక్ష కానీ ప్రాంతీయ ద్వేషాలు కానీ విద్వేషాలు కానీ విభేదాలు కానీ లేవు. దీనికి ప్రధాన కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 2014లోనే తీసుకున్న కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలే దీనికి కారణం. ఆనాడే పునాది పడింది అని చెప్పక తప్పదు. I remember, I think one of the first few sanctions that was given by the state government back in 2014 was our 280 crore sanction improving the policing machinery and equipment and the entire fleet of police vehicles. Integrated and responsive CCTV system for 3 commissioners, Hyderabad, Cyberabad and Rachakunda. The main center of this project is this Telangana Police Public Safety Integrated Operations Center and Data Center. This center will host integrated operations, command, computer aided call taking and dispatching, and provide single view of our 10,000 government cameras and integrated our 1 lakh community cameras. This center provides cutting edge technologies like computer vision, facial recognition, cyber security, and a state-of-the-art data center with 44 servers, racks for video storage. When compared to any other city or the state in the country, we always believed as a government, as a department, that technology should be used as a force multiplier. As always it is said, 1 CCTV camera is equivalent to 100 police personnel. A camera which never lies, a camera which gives transparency, a camera which gives a certainty of being caught and certainty of being punished. आदिलाबाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान रिम्स हॉस्पिटल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों में फ्रूट्स तकसीम किया गया। आदिलाबाद माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी के सदर साजिद खान की क़यादत में रिम्स हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। सैकड़ों नौजवानों ने खून का अतिया दिया। साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दिन को मुल्क भर में कौमी यौम तालीम और माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जा रहा है। अक़लियतों की तरक्की का झूठा वादा करने वाली तेलंगाना की KCR हुकूमत की जानिब से यौम तालीम के मौके पर कोई सरकारी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया। గవర్నమెంట్ ఆఫీసులలో ఎడ్యుకేషన్ డే చేస్తలేరు, మరి మైనారిటీ డే చేస్తలేరు, మరి ఇక్కడ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అఫీషియల్ గా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేస్తలేడు. కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా ఉండదు. వస్తున్న రోజులలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే వస్తుంది, కాంగ్రెసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందరికి తెలిసిపోతుంది ఈ రోజు ఎవరు అబద్ధం ఆడుతున్నారు, ఎవరు నిజాయితీగా పబ్లిక్ కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఓడినా గెలిచినా ఎప్పుడు పబ్లిక్ తోనే ఉంటాం, పబ్లిక్ సేవలోనే ఉంటామని కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్స్ మేమందరం ఇవాళ ప్రోగ్రాం చేసినాం. రేపటి సుగా మా పెద్ద ప్రోగ్రాం ఉన్నది. చలో కలెక్టరేట్ అని రైతుల కోసం మేము దీక్ష చేస్తున్నాం. కలెక్టరేట్ ముందు మేము అందరినీ మీడియా ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, రేపటి ప్రోగ్రాం సుగా హాజరు కావాలా. ఇవాళ సుగా ఘనంగా మేము
మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. जिला सिद्दीपेट के दुबक्का असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी का जश्न पूरी रियासत में मनाया गया. दुबक्का पर साबिक में टीआरएस का कब्जा था. टीआरएस उम्मीदवार को 1000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त हुई है. बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने 62,772 जबकि टीआरएस उम्मीदवार ने 61,320 और कांग्रेस उम्मीदवार ने 21,819 वोट हासिल किए हैं. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर ने दुबक्का की आवाम का शुक्रिया अदा किया. बीजेपी के सीनियर लीडर शौकत खान ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका है. आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से हमने काम किया है दुबक्का में और जितना जोश आज हमारे कार्यकर्ताओं में है, वो जोश के साथ हम बहुत ही अच्छी कामयाबी तेलंगाना की गवर्नमेंट के को बता दिए कि हम बाई इलेक्शन में किस तरह से जीत हासिल कर सकते. आज हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन में भी हम उनके कितने सीटों को हरा के रहेंगे और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी हम दर्ज करके बताएंगे. ये हमारा चैलेंज है केटीआर, केसीआर और तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए कि हम अपनी भारी जीत दर्ज करवा के रहेंगे जीएचएमसी इलेक्शन. क्योंकि जिस तरह से आज हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, आप लोगों ने देखा है कि कितनी बेहतरीन तरीके से और जितने अच्छे अंदाज से हमने जीता है दुबक्का के सीट को और 82% की पोलिंग और पूरा युद्ध उनके साथ में था. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पंडित संजय जी का जो हमारे. बिहार इंतखाबात में कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक में भी असेंबली इंतखाबात लड़ने का इरादा जाहिर किया है. मजलिस के लीडरों के मुताबिक कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस मुकाबला करेगी. दूसरी जानिब बिहार में जीत का जश्न गुलबर्गा में भी मनाया गया. शहर के मुस्लिम चौक पर वाक़े MIM के दफ्तर के रूबरू पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी की. पार्टी कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी. पार्टी के मकामी लीडर अब्दुल रहीम मिर्ची के मुताबिक गुलबर्गा के पड़ोसी हल्के असेंबली बिस्वा कल्याण के ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करना पार्टी आला हाईकमान के ज़ेर गौर है. वहाँ की पसपदने की जो सीमांचल की जो हालत थी, वहाँ की वो हालत पे इलेक्शन लड़ा गया है. तो इसीलिए MIM को वहाँ से इतनी जीत मिली है. तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ के जितने भी जो मसाइल हैं MIM बाखूबी उनको हल कर एक नया तारीख बनाएंगे. जिस तरीके से 2022 में कर्नाटक के इलेक्शन है, जैसा कि हमने बिहार इलेक्शन में आज तारीख बनाए, तो कर्नाटक के अंदर भी 2022 में इसी तरीके से लड़कर हम. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1196 नए मामले सामने आए हैं. रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,53,651 हो गई है. कल एक ही दिन में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है. अब तक 1,390 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान 1,745 अफराद सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट चुके हैं. रियासत में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा अफराद होम क्वारंटीन में है. ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 192 नए मामले दर्ज हुए हैं. जिला रंगारेड्डी में तालाबों नालों पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है. हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतल्लिक जियो जारी किया है. कलेक्टर ने बताया कि जिला रंगारेड्डी में 78 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही के बाद उन्हें इनेदाम कर दिया गया है. स्पेशल ड्राइव के दौरान शीरलिंगमपल्ली, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, गंडीपेट मंडल में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया. मुस्तकबिल में भी गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. हैदराबाद पुराने शहर के सैलाब मुतासरीन में इबादुल्लाह फाउंडेशन की जानिब से अशाए ज़रूरिया तकसीम की गई. पुराने शहर के इलाके अलजबील कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा और दीगर मकामात पर सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम की गई. फाउंडेशन के सदर मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्रम जामई ने बताया कि इबादुल्लाह फाउंडेशन की ये तीसरी किस्त है. साबिक में भी मुतासरीन में अशाए ज़रूरिया तकसीम की गई थी. मुस्तकबिल में ये सिलसिला जारी रहेगा. दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवान के आबाई मकाम में आखिरी रस्मात अंजाम दी गई.
शहीद महेश की लाश को कल आधी रात आबाई मकाम निजामाबाद लाया गया। आज सुबह शहीद जवान की आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। आखिरी रस्मात में तेलंगाना के रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के अलावा निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट, ZP चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की। हजारों अफराद आखिरी रस्मात में शरीक थे। निजामाबाद SP की क़यादत में सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला ने शहीद महेश के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया के अलावा घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।